آج فیض کی سالانہ تقریبات کے سلسلے میں بارسلونا میں ایک پروگرام ہوا. میرے ساتھ کانفیڈریشن اسپین کے صدر عبدالغفار مرغنا صاحب ہیں. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام بہت ہی اچھا تھا، بلکہ ان پروگراموں سے ہمارے بچوں کو ہماری ملک کی جو پوری ہر لحاظ سے، چاہے وہ کھیلوں کے سلسلے میں ہو، میں تھوڑی سی بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ ہماری دینی لحاظ سے ہو، چاہے ہمارے وہ اس طرح کے نامور شاعر جو ہماری پوری ثقافت کو لے کے آئے ہیں یہاں پہ، اور ہمارے بچوں کے لیے ایک ایسی تعلیم لے کے آئے ہیں جس کو جاگر کرنے کے لیے جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام ہم نے اپنے بچوں کو دکھانے ہیں، ان کو اپنے کلچر کے بارے میں اگر ہم نے ان کو آگاہی دینی ہے تو اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. اور یہ پروگرام ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ایک درس کے ساتھ رکھتے ہیں، تو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوں گے. ایسے پروگرام برقرار رہنے چاہیے. ہمارے ساتھ پاکستان ایسوسیشن کے صدر سید ظفر علی شاہ موجود ہیں، جو اس تقریب کو شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے انجوائے کیا. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا اس طرح کے ادبی پروگرام بارسلونا میں جو پاکستانی کمیونٹی موجود ہے ان کے لیے ضروری ہے اور یہ ہونے چاہیے؟ دیکھیں، پروگراموں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، 2000 سے لے کے 2011 تک کمیونٹی کی تعداد اور جیسے جیسے تعداد بڑھتی ہے ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں. آج صدر مرغنا صاحب اور ابرون منصور صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اس کا مطلب ہماری کمیونٹی میں یہ شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے. آئندہ بھی اس سے اچھے، یہ پروگرام بھی بہت اچھا تھا، اس سے اچھے پروگرام اور بھی شاعر حضرات کو بلانا چاہیے. اس طرح ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اپنے کلچر سے دور نہیں ہوگی، اپنی شاعری سے دور نہیں ہوگی، اپنے وطن کی خوشبو سے دور نہیں ہوگی. آج جو پروگرام بارسلونا میں ہوا ہے، یہ انور مقصود مسعود صاحب کے ساتھ یہ بارسلونا کمیونٹی نے بہت انجوائے کیا ہے. اور پہلی بار جو اتنے بڑے شاعر اور اتنے بڑے ادیب سے ادیب کے شاعری سے مستفید ہوئے. جناب راجہ شفیق صاحب تمام ان کے ساتھ کا مشہور ہے، جن نے کمیونٹی کو اتنے بڑے شاعر سے جو ملاقات کروائی ہے، آپ ان کے شکریہ. اور عوامی مسلم لیگ کے صدر راجہ پرویز اختر جانی صاحب موجود ہیں. انہوں نے یہاں جو فیض کے ساتھ صدر تقریبات کے سلسلے میں جو تقریب کی ہے اس کو سنا اور اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر لطف اندوز دنیا میں کریں گے کہ انور مسعود صاحب کی شاعری کو آپ نے کس طرح سے پہلی بار لائف دیکھتا ہوں اور پاکستان فیڈریشن صاحب موجود ہیں، جو پاکستان میں اپنی کمیونٹی کی عزیز شخصیت ہے. کوئی بھی ثقافت پروگرام ہو اور ان کی موجودگی نہ ہونا بدقسمتی ہی تصور کیا جاتا ہے. ہم ان سے پوچھیں گے جو فیض کی سلسلہ تقریبات کے سلسلے میں بارسلونا میں جو پروگرام ہوا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سلسلہ تقریبات جو فیض کی پورے یوم میں ہو رہی ہے، اہتمام کیا صدر مرزا جیسے مہمان کا اہتمام کرنا ہے وہ سب ٹھیک ہے. جس طرح سے تقریبات ہوتی ہے لیکن میں جب ہم اپنی شخصیات کو یہاں بلا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے کہ شور شرابہ ہوا جس طرح تقریب ہوئی. میں کہتا ہوں میرے جیسے جتنے بھی سماجی کارکن یہاں پر کام کر رہے ہیں، ہماری سالوں کی محنت ہے اس قسم کی ایک تقریب ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انور مسعود جیسی شخصیت جو پاکستان میں جن کے کہے کے
अल्फाज एक वजन रखते हैं, उनको यहाँ पर बुला के जो शोर शराबा और जिस तरह की कार्रवाई की गई इससे गुरेज किया जाता। अगर हम तकरीब को फैज़ तक महदूद रखते, इसको अपने लोगों को खुश करने की तकरीब ना बनाते, तो मेरे ख्याल में मसूद साहब भी खुश जाते, हम भी खुश जाते। और जहाँ पर अगर मसूद जैसी बड़ी लिखी शख्सियत जिन लोगों में वो बैठती है, जहाँ पर बात होती है, वो कहता है कि मैं बारसुना गया हूँ और वहाँ पर इस किस्म के मुझे लोग मिले हैं, इस किस्म की कम्युनिटी मिली है। जिस तरह आज मैं देखा जो उनके चेहरे से जो मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा पसंद क्या लगता है जो मैं आज उनके चेहरे से देख रहा हूँ। कभी भी किसी जगह पर बैठ के ये नहीं कहेंगे कि बारसुना के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, क्योंकि तो यही कहेंगे ना इनमें डिसिप्लिन है, ना इनको प्रोग्राम पता है, ना ये कैसे फैसला साल तकरीबा प्रोग्राम हुआ उसको शुरू से आकर तक पूरा जाए कि हम सोचना चाहेंगे कि ये तकलीफ ऐसे कबल इन्होंने खुद भी एक अदबी प्रोग्राम मास्टर सुल्तान कासिम साहब के साथ करवाया था, उसका तजर्बा और ये आज जो एक इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है फैसला के हवाले से और शायर मसूद साहब तशरीफ वाले क्या देखती है, क्या इस तरह के प्रोग्राम होनी चाहिए और जिस तरह का माहौल बना है इसके बाद समाजी कारकुनों को कुछ तहम्मुल से कुछ ऑर्गेनाइज करके प्रोग्राम करता है। अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का इनकार किया। मैं समझता हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम साबित हुआ और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। तो मतलब मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि हम इतनी बड़ी हस्ती के साथ बैठकर इतनी बड़ी हस्ती के सामने बैठकर उनको हमने सुना और इस प्रोग्राम के समझता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत मुस्बत असरात जो पड़ेंगे। ऐसे प्रोग्राम अदब के लिहाज से जो है खास करके इस तरह की शख्सियत जो अदब में सबसे पर मानी जाती है उनके साथ ऐसे प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए और इससे कम्युनिटी पर एक मुस्बत असर पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ उर्दू सहाफ़ा के इनामत सहाफ़ी और पाक न्यूज़ के चीफ एडिटर शफ़क़त अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इस प्रोग्राम को जो फैज़ की साला तकरीबात के सिलसिले में बार्सिलोना में तकरीब हुई है खुद हिस्सा भी लिया और इस प्रोग्राम को अंजाम भी दिया। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम का कोई ऐसा पहलू जिसमें आप महसूस करते हो कि इसको बेहतर किया जा सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दोस्त न्यूज़ वालों का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे बातचीत करें या मेरे कमेंट्स लें। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। थोड़ी मिसमैनेजमेंट हो जाती है, कुछ वाक़यात ऐसे हो गए उसमें जो मकाले के हवाले से थे या लफाजी के हवाले से थे, लेकिन उनको भी काबू किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात जो ये थी वो ये थी कि हम इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा बार्सिलोना राजेश शेख साहब ने जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। इस तरह किया जा सकता था कि इतने शायर इंक्लूडिंग में
वो ना पढ़ते ना सुनाते, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती आई थी, वो उनको सुना जाता, नए सुनी का उनको सुना जाता, जनरल को सुना जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद प्रोग्राम में निखार पैदा हो सकता था। मैं ये समझता हूँ कि हमें अलहदा नशिस्त हो जाती है कि मुकामी शायरों के साथ एक शख्सियत का। शख्सों में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने खुद भी पढ़ा, हालांकि आप बड़े बड़े मजमों को कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े मजमों में आप लेते हैं, यहाँ भी आपने एक पंजाबी नज़म सुनाई और भरपूर दाद दी। मैं समझता हूँ कि महसूस के बाद सबसे ज़्यादा आपको दाद मिली है नज़म के हवाले से जो पंजाबी में आपने पढ़ी। दूसरी बात यह कि वो नज़म फैज़ की नज़रिया के बिल्कुल करीब भी थी, क्योंकि फैज़ सदी के हवाले से हम फैज़ नहीं बना रहे थे और आपने बिल्कुल कोई जगीदाराना निज़ाम को ख़त्म करना की बात नहीं, क्योंकि वो किसी बात को ख़त्म करना चाहते थे। आप दूसरे शायरों की शायरी के हवाले से जिन्होंने मुकामी तौर पर अभी आपने कहा भी है कि उन्हें कुछ कम मौका दिया जाता है, जगह लोगों को सुनते, इस बात के हवाले से आप क्या कहना है? मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, जो पाकिस्तान में हालात हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान को डिस्कस करना चाहिए। पाकिस्तान के हम खिलाफ नहीं हैं, ना पाकिस्तान की सरहदों के, ना उसके मतलब लोगों के खिलाफ है, हम उस सिस्टम के खिलाफ है जो इस वक्त गुर्बत को पीस रहा है, गरीबों को मार रहा है, वहाँ पे डोनेशन नहीं पहुँच रही, सैलाब से लोग मर रहे हैं, इवन दैन के वो डेंगू मच्छर जो है वो मतलब बात का सबब बन रहा है। तो मसला ये था कि यहाँ सर पाकिस्तान में बैठे थे, हमें पाकिस्तान और फैज़ के हवाले से बात करनी चाहिए थी, हमें उससे हट के कोई बात, कोई शेर या कोई मिसरा भी नहीं देना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा था कि फैज़ जो एक सदी गुजार चुके और हम उस सदी में हैं जिसमें अनवर मसूद हैं और हम ये हमारे साथ गुजर रहे हैं उस सदी से, ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी किताबों के मुसन्नफ़, इतने बड़े शायर के ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उनको जाना जाता है, उनको माना जाता है, उनको ज़्यादा मौका मिलता है। मतलब कहने का ये मकसद नहीं है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन अगर उनको ज़्यादा मौका मिलता, नए सीधी पहली दफ़ा कम्युनिटी के साथ जो है वो उनकी बातचीत हो रही थी, तो उनको ज़्यादा मौका देते कि वो कम्युनिटी के मसाइल सुनते या कम्युनिटी से इतना घुल मिल जाते कि कम्युनिटी समझती कि हमारे जो नए सफ़ीर आए हैं, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जो मैड्रिड में आए हैं, वो हम में से हैं, वो हमारे मुश्किलात का भी जो अजाला करेंगे और हमारे लिए वो सहूलियत पैदा करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आप बार्सिलोना का जब आपने कहा कि आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ कैसे पाया? थैंक यू। के साथ बार्सिलोना के सबसे सीनियर सहाफ़ी मोहतरम साहब मौजूद हैं, जो 12 साल से यहाँ पे उर्दू अखबार बंद किए हुए हैं। इन्होंने आज का जो प्रोग्राम के हवाले से रहा उनको भी हैंडल किया। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज भी प्रोग्राम हुआ है, इतनी बड़ी शख्सियत को यहाँ बुलाया गया, मासूद साहब को, कि ये आज का प्रोग्राम बार्सिलोना में अगली प्रोग्रामों के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी छोटा कदम हमेशा बड़ी मंजिल की निशानी नहीं करता। इसी तरह से ये छोटा कदम तो यकीनन नहीं है। हम मुसलसल खुशी मना रहे हैं, बहुत बड़ा नाम अदब के हवाले से, मुल्क के हवाले से, पहचान के हवाले से यकीनन ये हमें और बहुत से लोगों को इस चीज़ की तरगीब देगा कि हम पाएँ और लोगों को भी थोड़ा सा एजुकेट करने में मदद मिलेगी। उनकी प्रोग्राम क्या हो एक एक जगह मिल के कभी भी छोटा नहीं। मेरा सवाल ये है कि आप जो आज बड़ी सी बात पैदा हुई है उसको किस वजह से देख रहे हैं? साहब का अपना एक नज़र है, की जो शिकायत है वो फैज़ को शिकायत वही है, शिकायत सिस्टम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ फैज़ नहीं था। और ऐसा बात पर सिस्टम की मुखालफत करते करते सद तक चले जाते हैं, महसूस ये होने लगता है सिस्टम के खिलाफ जो वहाँ पे इससे साली माशरा है, हम उसको
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये कहे कि चूँकि इस्तेहसाल हो रहा है तो इस धाकिए में ज़रूरत नहीं, हमें सब मिल के हम उस माहौल में रहते हुए उस माशरे की बेहतरी के लिए काम करें, वही मुल्क हमारे लिए है और हमें बदलनी है। थैंक यू।